ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे वडोदरा की, जहां पुराने झगड़े में भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य पर सिरफिरे तत्वों ने किया जानलेवा हमला। आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस टीम ने गोविंद चौहान हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के 14 घंटे बाद हुई प्रसूता की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर वडोदरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के पुनर्निर्माण समेत अन्य कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वडोदरा सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौर, विधायक वडोदरा, जिला कलेक्टर एबी गोरे, डीआरएम जितेंद्र सिंह सहित रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव देखने की व्यवस्था वडोदरा के प्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना सहित लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। सेल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित निबंध प्रतियोगिता एवं ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सांसद, मेयर, विधायक, डीआरएम, जिलाधिकारी सहित गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रेलवे के कुलियों को नियुक्ति पत्र देकर बक्कल पहनाया गया। 207 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें प्रतापनगर, विश्वामित्री, डेरोल, डभोई, मियागाम, करजन और भरूच रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी द्वारा हमेशा देशना दरेक मंत्रालय પોતાને કરવાની કામગીરી એ દેશમાં વિકાસ કરે એ દિશામાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી માર્ગદર્શન આપતા હોય છે। તો રેલવે પણ 2014 પછી જે રીતે રીડેવલપમેન્ટ સ્ટેશનનું હોય કે પછી ટ્રેકનું હોય કે પછી ટ્રેનનું હોય, દરેક દિશામાં રેલવે પણ કામ કરી રહ્યું છે। આજે ભારત દેશ માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે। 508 રેલવે સ્ટેશન પર આજે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે અને આ 508 રેલવે સ્ટેશનમાં મારી પોતાની માગણી હતી, મારા વડોદરાવાસીની માગણી હતી કે જે રીતે છાયાપુરી રેલવે સ્ટેશનને સેટેલાઇટ રેલવે સ્ટેશન બનાવવું અને એ આપણે વડોદરાવાસીની સેવામાં કાર્યરત પણ કર્યું। તો એ જ રીતે પ્રતાપનગર રેલવે સ્ટેશનને પણ આપણે સેટેલાઇટ રેલવે સ્ટેશન બનાવવું છે। આ વાત જ્યારે કેન્દ્ર સરકારમાં રેલ મંત્રાલયને મૂકી અને એ દિશામાં કામગીરી રેલવે મંત્રાલયે કરી અને 67 કરોડના ખર્ચે આપણે વડોદરામાં પ્રતાપનગરને સેટેલાઇટ રેલવે સ્ટેશન બનાવવા જઈ રહ્યા છે। એનો શિલાન્યાસ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। તો સાથે વિશ્વામિત્રી એ પણ રેલવે સ્ટેશનનું રીડેવલપમેન્ટ 19 કરોડથી પણ વધારે રકમથી ત્યાં રીડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે। આપણા વડોદરાથી કેટલાય યાત્રીઓ, કેટલોય નોકરિયાત વર્ગ વિશ્વામિત્રી રેલવે સ્ટેશનથી આવન જાવન પણ કરે છે અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે વિશ્વામિત્રી રેલવે સ્ટેશનનું પણ ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે। આ ડેવલપમેન્ટ, આ કાર્યક્રમ પહેલાં વડોદરાના વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતે એમનો વિચાર શું છે રેલવે માટે ભારત દેશમાં, આ વિચાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્વારા એમનું નિબંધ અને એની સાથે ચિત્ર દ્વારા એમણે વડોદરામાં એક વંદે ભારત ટ્રેન બી શરૂ થાય એવી માંગણી પણ મૂકી। એમણે વિચાર કર્યો કે દેશમાં વંદે ભારત ટ્રેન જે શરૂ થઈ છે એનાથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખુશ છે અને આપના માધ્યમથી મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વડોદરાવાસીને ચોક્કસ કહીશ કે કદાચ આપના વિચાર મને પહેલેથી જ ભગવાને આપ્યા હશે કે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી માંગણી કરે છે અને એ માન્ય મંત્રીશ્રી પાસે આપણે વડોદરાની માંગણી મૂકી જ છે અને એના ભાગ સ્વરૂપે વડોદરાથી કોટા અને વડોદરાથી જામનગર પાસેનું હાપા ત્યાં વંદે ભારત ટ્રેન શરૂ થાય એવી માંગણી આપણે મૂકી છે। એ દિશામાં કામગીરી શરૂ થઈ રહી છે। તો આજના દિવસે જે આ કાર્યક્રમમાં સૌ પધાર્યા, સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંदन અને बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता मितुल गोसाई की रिपोर्ट। खबर वडोदरा से है, जहां पुराने झगड़े में शनिवार रात वडोदरा शहर में भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य पर सरफिरे तत्वों ने बेसबॉल स्टिक से हमला कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बख्शी पंच मोर्चा के कार्यकारी सदस्य ने सचिन ठक्कर जैसे घातक हमले की आशंका व्यक्त की है। वहीं अचानक हुए हमले से घबराकर हमलावर मौके से भाग निकले।
घायल भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य को इलाज के लिए मनेजा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनके हाथ पैर को शिफ्ट किया गया है। वहीं राकेश पाटनवाड़िया ने वडोदरा शहर भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के कार्यकारी सदस्य और वडोदरा जिला ठाकुर सेना के अध्यक्ष से मुलाकात की। मांजलपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए राकेश पाटनवाड़िया के शिकायत पत्र की जांच शुरू कर दी है। મારું નામ રાકેશ પાટણવાડિયા છે અને વડોદરા શહેર બીજેપી બક્ષીપંચ મોરચામાં શહેર કારોબારીની મારી જવાબદારી છે અને ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ છું અને સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરું છું. હવે કાલે રાત્રે સાડા 9 પોણા 10 વાગે એક નજીવી ગાડીને ઓવરટેક કરવાની બાબતે એક વ્યક્તિ સાથે ભરત તાંબે નામ છે એમનું, એમની સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી. તો એ અદાવત રાખીને હું જ્યારે નોવીનો પાસે મારા કામેથી ઊભો તો એક ફ્રેન્ડની રાહ જોતો હતો અને મારો ફોન ચાલુ હતો ત્યારે બે ઈસમો એક ભરત તાંબે અને બંટી સરદાર અચાનક બંને જણ આવીને મને ગાળો ભણવા મળે. બંટી સરદાર અને ભરત તાંબે પાસે કોઈક બેઝબોલ કે લાકડા જેવું મોટું હથિયાર હતું કે જેનાથી એને મારા પર જીવલેણ હુમલા કરવાનું ચાલુ કર્યો. પ્રથમ મારા પગમાં માર્યું અને એટલે હું પડી ગયો અને પછી હું ઊભો થવાની કોશિશ કરી તો બંટી સરદારે મને પકડીને પાછળથી પકડી લીધો અને ભરત તાંબે અસંખ્ય મને લાકડીઓથી વાર કરવા માંડ્યો, જેમાં મને માથામાં સ્ટીચ વાગ્યું છે, હાથમાં મારા કોણીમાં 2 ટુકડા થઈ ગયા છે અને પગમાં ફ્રેક્ચરને એનું પ્લેટ નાખવી પડે એવું છે. એટલે એ લોકો મારી પર એટલો બધો હુમલો કરતા મારો ફોન પણ હાથમાં હતો એ પણ તૂટી ગયેલો હતો, એટલે હું કોઈને ફોન બી નહોતો કરી શકતો. અને એ લોકો મને એવું કહેતા કે આ તેર કો બંટી સરદારને કીધું મેં મરી જઈશ એટલે તો કે આ તેર કો પતાવી ડાલેંગે હમ લોગ, એવું બોલતા હતા. અને પછી લોકટોળા ત્યાં બધા ભેગા થઈ ગયા અને બૂમો પાડવા માંડે ત્યારે એ લોકો બધાને જોઈને એ લોકો ભાગી ગયા અને ઓળખીતા 2-3 વ્યક્તિ હતા એ લોકોએ મને ઉચકીને મારી ગાડીમાં બેસાડીને મને હોસ્પિટલ સુધી લઈ આવ્યા. એટલે ભરત તાંબે અને એ લોકોનું છે ભૂતકાળ એવો છે કે એમપીથી વોન્ટેડ છે અને ઘણી બધી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો છે અને અસામાજિક તત્વો જેવો છે. અને બંટી સરદારનું પણ એવું જ છે કે આ લોકો અસંખ્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે અને માથાભારે તત્વો છે. એટલે મને તો ગમે ત્યારે અહીંયાથી બી મને હજુ બીક લાગે છે કે હું અહીંયાથી જઈશ તો આ લોકો આ અદાવતે બી એ લોકો મારી પાસે 15-20 દિવસ પછી ફરીથી હુમલો ના કરે એવું મને બીક લાગે છે. એટલે આવા લોકોને સખત સજા થાય તો આ ઉદાહરણરૂપ બને કે બીજા કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિને પણ જો મારા જેવા સામાજિક વ્યક્તિ પાસે આવો હુમલો થતો હોય તો સામાન્ય વ્યક્તિને તો આ લોકો પોલીસને કે પ્રશાસનને એને પોતાના ખિસ્સામાં રાખતા હોય છે. એટલે મારી બસ એક તો માંગ છે કે આ લોકોને કડકમાં કડક સજા થાય અને દાખલારૂપ થાય કે આવા લોકો सामान्य व्यक्ति साथे आवी कोई प्रवृत्ति करी ना सके। बड़ोदरा से सी न्यूज संवाददाता मितुल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के बरेसर थाने से है, जहां गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरेसर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला जागरूकता व सशक्तिकरण अभियान के कार्यक्रम का आयोजन प्रतिदिन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज रविवार को होरिलपुर पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों ने उपस्थित बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया व महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी, जिसमें 1090 112 1076 181 के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर है। कोई घटना की आशंका हो तो इस नंबर पर तुरंत फोन करें, पुलिस आपकी तुरंत सहायता करेगी। इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक रोहित द्विवेदी, कांस्टेबल दुर्गेश खरवार, अभयधर दुबे, महिला कांस्टेबल प्रियंका रोली व कासिमाबाद वीडियो, भीमराव प्रसाद, अरे बरेसर प्रधान हरेंद्र शर्मा व क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा से है, जहां स्वाट सर्वेलांस तथा भुड़कुड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने गोविंद चौहान हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कत्ल भी बरामद किया है। स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तारावती यादव द्वारा अभियुक्तगण छोटेलाल चौहान पुत्र राम आधार चौहान निवासी ग्राम जखनिया, गोविंद व मनोज यादव पुत्र इंद्रदेव यादव निवासी ग्राम अलीपुर मदरा मंझरिया समेत बबलू उर्फ राजेश राम पुत्र स्वर्गीय पंचम राम निवासी ग्राम पदमपुर मैगराय थाना जनपद गाजीपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर पुलिस कार्यालय में एसपी ओमवीर के समक्ष पेश कर मीडिया से रूबरू कराकर सभी अभियुक्त गणों को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। शातिर बदमाशों पर जनपद के विभिन्न थानों में पहले से भी करीब आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। 23 तारीख की सुबह भुड़कुड़ा थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगांव
गांव में गोविंद चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस पुलिस पे सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। परिजन उस समय किसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये दर्शाते हुए कि गांव में एक विवाद, उनका ज़मीनी विवाद, जो आबादी की ज़मीन है उसको लेकर एक हवलदार सिंह और उसके परिवार से था। जिस भूखंड के ऊपर विवाद बताया गया था उसमें 30 साल पहले भी हत्या हो चुकी थी और उसमें हवलदार सिंह व उसके अन्य परिजन अपने ही भाई की हत्या करने में जेल गए थे। वर्तमान में भी परिजनों द्वारा ये बताया गया, लेकिन जो वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से जो जानकारी हुई उसमें थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा था कि वास्तविक घटना जो बताई जा रही है हो सकता है इसके इत्र भी हो। जब धीरे धीरे मृतक के बारे में जानकारी की गई तो मृतक मूल रूप से ज़मीन का धंधा करते थे, खरीदना बेचना, उसमें प्रॉफिट। तो जब इसकी गहराई में गए तो जखनिया जो गांव है वहाँ पे भी एक मकान को लेकर एक विवाद था। वहाँ पे 4 भाइयों का एक मकान था जो काफ़ी पहले जो मृतक गोविंद चौहान है उनके पिताजी ने सादा कागज़ पे लिखवा रखा था। वर्तमान में जो गोविंद चौहान है उन 4 भाइयों की जो पार्टीबाजी चल रही थी उसमें एक महेंद्र पक्ष था और एक छोटे लाल पक्ष था। तो महेंद्र पक्ष को सपोर्ट कर रहा था और उन बाकी दोनों भाइयों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम महेंद्र के पक्ष में इस मकान को छोड़ दो, महेंद्र को दूंगा। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई। जब और इसके बारे में गहनता से हमने अपनी स्वाट सर्विलेंस टीम भी लगाई और इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया तो कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जो उनका महेंद्र का दूसरा पक्ष और उसका भाई था छोटे, उससे जब पूछताछ की तो उसके द्वारा पूरी घटना का सुधार किया गया क्योंकि वो कुपित था और उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जो अपराधी किस्म के हैं मुकेश राजेश यादव और दूसरे का नाम है बबलू, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं विभिन्न अपराधों में। इनके द्वारा इसने योजना बना के इन तीनों ने 22/23 की रात में इस घटना को अंजाम दिया। शुरू से पुलिस के लिए ये इसलिए पहेली बनी हुई थी कि जो मृतक था वो अपने परिवार के बीच में सोया हुआ था, लेकिन किसी की भी आँख नहीं खुली। जबकि प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब भी जो गोली थी वो सिर में एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ निकली थी, वो भी बरामद हुई थी मौके से। तो लगातार बाद में जब और चीज़ें देखी गई, बाद में उसका रिक्रिएशन करने का प्रयास किया गया तो क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत कूलर और पंखे घर घर में चलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि गहरी नींद में हो सकता है लोगों की आँख ना खुली जाए। सर, इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया मर्डर बिल्कुल, इनके द्वारा पूरी घटना बताई गई है। जो जिस आग्नेय शस्त्र का उपयोग इनके द्वारा हत्या कारित करने के लिए किया गया था वो इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो इंगेज रहा है कि नहीं? अभी तक उसका कोई रोल इस घटना में नहीं आ रहा है। ये सही है कि उससे एक आबादी की ज़मीन को लेकर इनका मनमुटाव था, लेकिन अभी तक की विवेचना में जो पूर्व में जेल गया था क्योंकि वो एकदम परिवार उस समय ये था कि परिवार का कहना है कि उन्हीं के द्वारा की गई है और वो मिल भी गए थे। प्रथम दृष्टया परिवार की बातों को सही मानते हुए उन्हें जेल भेजा गया है, लेकिन अब विधिक रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी क्योंकि अब इस घटना के सही अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और हर तरीके से परिजन भी उससे संतुष्ट हैं
और परिजनों हत्यारों का तो ये भी कबूलनामा है कि हो सकता है इसमें अगर कोई और भी साथ में होता तो उसके साथ भी कोई घटना घटित कर सकते हैं, इसलिए परिवार मुतमईन है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां ग्राम पंचायत हरिहरपुर मजरा पिपरी का प्रमुख मार्ग गांव के बाहर कच्चा है। पेयजल योजना के अंतर्गत पाइप डालने के लिए खुदाई की गई, परंतु ना तो मिट्टी से बंद हुई, वहीं ग्राम के अंदर खड़ंजा उखड़ा पड़ा है। 2-2 फीट गड्ढे हो जाने के कारण आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं गड्ढों के चलते जयराम तिवारी, रामशंकर तिवारी, अनुराग, जगदीश, अजीत, अशोक, अचल आदि लोगों में भारी आक्रोश है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र से है, जहां ऑपरेशन से 14 घंटे बाद प्रीति पाल नाम की प्रसूता महिला की मौत हो गई। जहां परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया है। परिवार ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल पहले ही देवेंद्र पाल नाम के व्यक्ति की प्रीति पाल के साथ शादी हुई थी। भोजपुर थाना क्षेत्र में परिवार ने बताया कि प्रीति पाल को हम कल ख्वाजा हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर ने कल शाम उसका ऑपरेशन किया। उसका बेटा हुआ, जहां परिवार के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के 1 घंटे बाद ही प्रीति की हालत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर को प्रीति की स्थिति के बारे में अवगत भी कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने प्रीति को नहीं देखा, जिसके बाद आज सुबह अचानक से उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी। हमने स्टाफ को बताया तो स्टाफ के द्वारा कहा गया कि डॉक्टर आ रहे हैं। काफी घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर प्रीति को देखने नहीं आए, जिसके बाद प्रीति की मौत हो गई। मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, क्या हुआ है यहाँ पर आज? मेरी लड़की कल अच्छी खासी आई थी, डॉक्टर ने जाके बात करा, भर्ती करा, कह दी नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, कोशिश करके देख ले रहे हैं, अगर नॉर्मल होगा, अगर ना हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, हमें क्या पता, हमने तुम्हारी भर्ती कर दी। 1 मिनट बात कर लूँगी। तो उन्होंने भर्ती कर ली, ठीक है। 1-2 घंटे 2-3 घंटे वेट करा उनका, नॉर्मल की ना चांस है, तो 7 बजे के करीब उनकी ऑपरेशन करने के लिए ले गए। ऑपरेशन करना है, कोई बात ना, ऑपरेशन सही बिल्कुल जैसा लड़का बच्चा हो गया वो सही हो गया। अब जैसे हमारी लड़की आके लेटी तो पूछते ही कुछ बेटा ठीक है अंदर से ऑपरेशन, तो उसने कि हाँ ठीक है। तो फिर मैं करी थोड़ी देर बाद से पसीने की वो आ गई, वो तेज से पसीने चढ़ गया। मैं कह रही बेटा क्या बात हो गई, मैं बेटा क्या बात हो गई कि मम्मी पता ना मुझे क्या हो रहा। तो मैं कह रही अच्छा चल मिलती, मैं डॉक्टर से बात करके देखूँगी, जे तुम ही कल इस टाइम शाम के टाइम तुम ना थे। किस टाइम हुआ था बच्चा? 7 बजे, 7 बजे करीब। तो तबीयत कब बिगड़ी है? तबीयत रात भर से बिगड़ी समझो जी। वो थोड़ी देर को तसल्ली हुई है, इतनी देर ऑपरेशन में से आई है, आधा घंटा। जब भी पूछ रही हूँ बार बार यही कह रही है मम्मी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पेड़ों में दर्द बता रही हो। तो मैं ये समझ रही मैं कि चला ऐसे क्या पता ऑपरेशन से दर्द हो ही रहा होगा। फिर पूछूँ बेटा क्या परेशानी है, मम्मी मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सीने में और पेड़ों में दर्द बताती है। फिर मैंने इनसे बात बोल के करा तो 4 जंक्शन लगाए थे इन लोगों ने, 4 जंक्शन लगाए। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने 2:30 बजे करीब आके डॉक्टर से कहा मेरी बेटी मांग रही है पानी, किसकी चढ़ी है ज़्यादा, डॉक्टर साहब बताओ पानी मांग रही है, दें ना दें। उन्होंने कह दी पानी मत दो, होठ भिजो। उनके कहने से मैं 2-3 बार होठ भिजो दो। फिर वो मांग रही पानी, फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब पानी मांग रही है मेरी बेटी, दें ना दें। और दे दो इतना सारा ढक्कन में कर, इतना ढक्कन भी मैंने दे दिया, इतना पानी वो ढक्कन और बोतल की ये जो है ये बस। और चरण धुनी का होगा इतने से इतना, वो सुबह के टाइम 6 बजे के 6-7 बजे के। आज सुबह दिया था? आज सुबह की, रात भर्ती करी है तो उसने अपना आप ही पी लिया ऐसा करके कि तुम तो होट ही होट बुझा रही हो, बस इतना ये हुआ। और लोंडिया के मेरी पेट का दर्द रात से ही बंद ना हुआ, जिस घड़ी से आई निकल गई। कब शादी हुई थी आपकी बेटी की? 1 साल हुआ पूरा जून में। अच्छा, 1 साल पहले शादी हुई थी। क्या नाम था बेटी का आपके? प्रीति। तो पति का नाम क्या है उसके? देवेंद्र। बड़ी बेटी है आपकी? बड़ी बेटी, 4 बेटी है मेरे पास। अच्छा, और बेटा कितने? 1 बेटा। पति क्या करता है इसका? ऐसे काम करते हैं, खेती किसानी। आज सुबह तबीयत बिगड़ी है? आज सुबह तबीयत बिगड़ी है? हाँ, सुबह 4 बजे से तो ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। अब जब 4 बजे से ज़्यादा तबीयत खराब हुई, मेरी मैडम यहाँ पे सो रही, तो मैंने उन्हें जगाया, मैडम चलो मेरी लौंडिया को पसीने के ले आ रहा, तुम चल के देखो।
क्या परेशानी है। उठी वो, उन्होंने क्या दी नर्स से कि इंजेक्शन लगा दो। वो डॉक्टर के पास आई थी आप? हैं? क्या नाम है डॉक्टर का? मैडम की ये जानती हूँ, मुझे नाम की नहीं पता। नाम नहीं पता, नाम क्या है उनका। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद की रिपोर्ट। खबर बदायूं से आ रही है, जहां आपको बताते चले कि तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जहां मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गुन्नौर की तरफ से सहसवान जा रहे थे। मां और बेटे की जतकी के पास तेज रफ्तार गाड़ी होने के कारण डिवाइडर से जा टकराई, जिससे मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से सीएससी केंद्र दहगबा पहुंचाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां मामूली कहासुनी होने के बाद मरबोजिया गांव के पास कांवड़ यात्रियों व ग्रामीणों में हुआ संघर्ष। बता दें कि एटा टूंडला मार्ग स्थित ग्राम मरबोजिया के पास कांवड़ यात्रियों और ग्रामीणों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ यात्रियों के द्वारा एटा टूंडला मार्ग जाम कर दिया गया और ग्रामीणों की बाइक को कांवड़ियों के द्वारा आग लगाकर फूंक दिया गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मरबोजिया गांव के पास भारी पुलिस फोर्स के साथ जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल, एसएसपी राजेश कुमार सिंह कई थाने की पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और समझा बुझाकर किसी तरह कांवड़ यात्रियों से जाम को खुलवाया गया। हजारा नहर पे फिरोजाबाद के रजाउली थाने के कुछ कांवड़िए गुजर रहे थे। उस समय एक बगल का गांव है अमर गोजिया, वहाँ के बाइक वाला उसमें बीच में आ गया था, जिससे इनमें कुछ हल्का सा वाद विवाद हुआ था। इसके बाद अमर गोजिया गांव के पास कांवड़ियों के साथ जो है कुछ लोगों ने रोक करके अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। आपस में लोगों में थोड़ा बहुत कुछ उथल गुस्सा हुई है और इसके बाद जो है काफ़ी कांवड़िए वहाँ पे एकत्रित हो गए और वहाँ पे जाम की स्थिति आ गई। बहरहाल जाम वहाँ से खुलवा दिया गया है। आम डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, सीओ साहब, सारी फोर्स वहाँ पे आ गई थी। बातचीत करके जाम खुलवा दिया गया था। पुलिस की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी। हिंदुओं का ही गांव है पूरा और मीडिया में शायद कुछ और चल रहा होगा, शायद ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है और इसमें निश्चित तौर पर हम गिरफ्तारी कराएंगे, सख्त कदम उठाएंगे। वहाँ पे मौके पे आज भी फोर्स है, गांव में दबिश चल रही है और कांवड़ बिल्कुल निकल रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। सर, आज आगरा रोड पर एक मामला संज्ञान में आया है, क्या है पूरा प्रकरण सर? आज जनपद एटा थाना कोतवाली देहात में अमर गोजिया नाम के गांव के पास एक घटना का संज्ञान लिया गया है। इस घटना में जो गांव वाले थे अमर गोजिया के और कुछ कांवड़ यात्री थे जो फिरोजाबाद जा रहे थे, उनके बीच में विवाद हुआ था। मौके पे दोनों में विवाद हुआ था। अब वहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। मौके पे एसडीएम, सीओ, एडीएम, एडिशनल एसपी, कप्तान साहब और मेरे द्वारा स्वयं भ्रमण करके देखा गया है। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में शांति व्यवस्था सामान्य है, वहाँ पे कोई भी इस तरह का विवाद नहीं है। और जो रास्ता है जो आगरा से टुंडला से जो सोरों का रास्ता है जो एटा होके गुजरता है और जो इस गांव से भी गुजरता है, वो पूरी तरह से सामान्य है और कांवड़ यात्री यहाँ से जा भी रहे हैं और वापस वहाँ से जल लेके सोरो जी से वापस आ भी रहे। किसी प्रकार का एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिले के वार्ड नंबर 6 आजाद नगर में एक पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान वार्ड नंबर 6 से राजू शंखवार को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि व्यक्तिगत फायदे के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की सेवा के लिए ही कार्य करती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने के लिए बैठक रखी एवं कार्यकर्ताओं को इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्तिगत फायदे के लिए नेता बने हैं। आम आदमी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सच्चे समाजसेवी हैं जो जनता की सेवा करना जानते हैं। वे सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इस दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी सहित धर्मेंद्र शर्मा, ब्रह्मदत्त, ईशान शर्मा, माघवेंद्र शर्मा, तेजपाल शंखवार, सुशील मथुरिया, सादान खान, मोहम्मद इमरान, धर्मेंद्र यादव, विकेश यादव, शादाब खान, राज बहादुर, राम प्रकाश, पप्पू, प्रेम सिंह, गीतम सिंह आदि मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है, आम आदमी पार्टी का फरीदाबाद जिला है। सर, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर?
आज का कार्यक्रम राज्यसभा मेंबर उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय भैया के आदेशानुसार जिस तरह से समीक्षा बैठकें की गई के अनुरोध किया था, जिसमें फिरोजाबाद की पहली समीक्षा बैठक आज की गई, जिसमें वार्ड नंबर 6 से राजू संगपाल को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ में हजारों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इसी संदर्भ में साथ साथ हमने आम आदमी पार्टी की जो 14 तारीख को तिरंगा यात्रा होनी है लखनऊ में, इसके लिए भी लोगों को अवगत कराया और चलने की बात की, और काफ़ी सारे लोग साथ में चलने की। यहाँ जिस तरह से जन सैलाब आम आदमी पार्टी का उमड़ा है, उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद सबसे अव्वल रहेगा लोकसभा। ये समीक्षा बैठक आज जो की, जिस तरह से प्लान की गई थी, जिस तरह से ऊपर के निर्देश थे कि पहले संडे में, महीने की पहले संडे में बैठक। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब सिर्फ पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधियों की आर्थिक कमर को भी तोड़ने का काम कर रही है। एक तरफ यूपी सरकार अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो दूसरी तरफ अपराध द्वारा बनाई गई संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। ताजा मामला महाराजगंज जनपद के सुनौली कोतवाली क्षेत्र स्थित सुकरौली का है, जहां 2 शातिर अपराधी इरफान और उसके भाई आमिर खान के अवैध संपत्ति पर एसडीएम मुकेश सिंह व थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज गंगाराम यादव व चौकी इंचार्ज अंकित सिंह व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दुग्गी मुनादी की कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क कर इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। दरअसल सुनौली कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 2 भाइयों ने ड्रग्स तस्करी समेत तमाम संगीन अपराधियों में अकूत संपत्ति अर्जित की थी। इस संबंध में न्यायालय में विचाराधीन मामले में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा संपत्ति कुर्क करने के निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसके अनुपालन में आज प्रशासन और पुलिस की टीम ने दोनों अपराधियों के विभिन्न खेतों व 2 मकानों पर डुग्गी मुनादी कराते हुए कुर्क कर वहां सरकारी ताला लगाया गया। एसडीएम नौतनवा ने बताया कि कुल करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर सुपौल के पिपरी थाना क्षेत्र के निर्मली गांव की है, जहां महज 8 लाख रुपए दहेज नहीं देने के कारण एक 19 वर्षीय नवविवाहिता ज्योति कुमारी की ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर लाश को जला दिया है। लड़की के पिता कटैया माही निवासी अखिलेश कुमार मंडल के द्वारा पिपरा थाने में आवेदन देकर ससुराल वालों के 9 लोगों को नामजद करने के अलावा 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि 2 माह पूर्व मेरी पुत्री ज्योति कुमारी को भगा कर ले गया था और शादी कर ली। शादी करने के बाद ससुराल वालों के द्वारा 8 लाख रुपए देने के लिए मेरी पुत्री के साथ बराबर दबाव देते हुए मारपीट करने लगे। पैसा नहीं देने पर 27 जुलाई को रात्रि में ससुराल वालों द्वारा चाप चढ़ाकर सभी ने मिलकर मार दिया और लाश को जला दिया गया है। ससुराल के द्वारा गुरुदेव मंडल, योगी मंडल, सिकेन मंडल, भोगी मंडल, रेखा देवी, हरि मंडल, काजल कुमारी, सभी निर्मली एवं कंचन कुमारी, गणेश मंडल, साकिन लाउड एवं 4-5 अज्ञात लोगों द्वारा मारकर हत्या कर लाश को जला दिया गया है, जिसकी सूचना मुझे नहीं दी गई। किसी ग्रामीण के द्वारा मुझे पता चला कि पुत्री को जला दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद जब मैं निर्मली अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचा तो घर पर एक बूढ़ी औरत थी और सभी लोग घर में ताला लगाकर घर से फरार हो गए। घटना को लेकर पिपरा थाने में लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना में कहीं न कहीं पुलिस की भी मिलीभगत है, जिससे थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। क्या हालत है बेबी आपकी बच्चिया का? पता चला जब आपके बच्चिया कहाँ है? नहीं कुछ पता चला? खोजे हैं आप? उसका परिजन सबसे जानकारी लिए जो बच्चा आपका कहाँ है? मार के घोसिया दिल के अहाँ सब की चाहे प्रशासन अहाँ के खोज के दिए? प्रशासन खोज के तो प्रशासन अहाँ सबके बात पर अनदेखी क्या रहल छै ना? प्रशासन के तो फोन कर लगे जी, तो जो फोन मिले तो कहल कि क्या हुआ, बोला कि लास्ट जो है मिल गया है, लड़की का पिताजी जो है यहीं पर है, मिलान जुलान हो गया है। हम उसको बोले कि क्या बोल रहे हैं आप, गलत काहे बोल रहे हैं?
बच्चा मिल गया है, इसमें सलाह विचार हो गया है, लाश को जलाने के लिए जा रहा ओ है। प्रशासन पिता किसी बोल रहे हैं। अगले को जानकारी दे रहा था वो। हाँ, अच्छा, उसमें प्रशासन में क्या था? थाना में बड़ा था और क्या बड़ा था यहाँ निर्मली चौक पर। और आप खुद बोल रहा था जो मतलब लड़की का परिजन वहाँ मौजूद है गाड़ी में हमको ले गया, गाड़ी में बैठा कर बोल रहा था। और गाड़ी में आपको बैठा लिया था और उसके बाद वही बात कर रहा था जो मतलब लड़की का पिताजी और सब मिल गया है, वो लोग अपने में मिलन जुलन कर लिया है। मिलान करके ला चलाने। आपको कैसा आशंका हो रहा है जो प्रशासन मैनेज है? समझा पीसी खा लिया है। प्रशासन पीसी खा लिया है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अब बताइएगा आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ है आपका? कौन थी वो जो जिसके बारे में आप बता रहे थे? क्या नाम है उसका? लड़का का क्या नाम है जिससे शादी हुई थी? आपको कितना बाल बच्चा है? बड़ी वाली थी क्या? क्या हुआ आपको इससे शादी जो हुआ तो उसके बाद डिमांड भी किया गया आप लोग को? हाँ, मालूम हुआ कि बच्ची को कह रहा था कि 8 लाख रुपया लाइए। और बच्ची को उसी बात को लेकर के मारपीट किया है। 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। आपको बच्ची बताई थी क्या? आदमी सब बोल रहा है वहाँ का आदमी सब बोल रहा है जो मतलब 8 लाख रुपया मांग किया गया था। बच्चिया के द्वारा आपसे पैसा मांगा जा रहा था। कितना पैसा मांगा जा रहा था? तो नहीं दिया आप। जब मारने के बाद उसको जानकारी आपको कैसे मिला? 10:30 बजे रात में। 10:30 बजे रात में कौन फोन किया था आपको? मेरा गाँव का आदमी था। आपके गांव का आदमी वहां से जानकारी दिया। उसके बाद आपके परिजन के द्वारा मतलब उसके परिजन के द्वारा आपको जानकारी नहीं दी गई? कोई नहीं दिया। अच्छा, तो उसके बारे में आप प्रशासन को दिए हैं? प्रशासन खबर कर दिया। प्रशासन को खबर किया तो प्रशासन क्या उस पर एक्शन लिया? आया 1.5 घंटा के बाद। अच्छा, 1.5 घंटा के बाद यहाँ आया था कि वहाँ आया था? प्लॉट पर जाने के बाद डेड बॉडी आपको अभी तक मिला? नहीं मिला। डेड बॉडी को क्या किया? बोल रहा है खोजिए। मुझे हम कहाँ खोजेंगे? कौन कहता है खोजिए? पुलिस वाला कहता है। पुलिस वाला कहता है। जिस जगह पर आपकी बच्चिया की शादी हुई थी उसके परिजन से आप पूछे जो मेरा बच्चिया कहाँ है? वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर सब फरार है? कब की घटना है ये? तो पता नहीं, मालूम हुआ हमको 10 बजे रात में, 10:30। मतलब कब 10 बजे रात में? कब मरी बच्ची आपकी? परसों का रोज। परसों के रोज। अभी तक आपको बच्चा नहीं मिला है? नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है? नहीं है, हमको चाहिए। आपको बच्चा चाहिए और बच्चा को जो है जान से मार दिया है? जान से कहता है। आपको कैसे मालूम जो कि जान से मार दिया है? नहीं देख रहे हैं वहाँ पर बच्चा नहीं। अभी तक बच्चा नहीं है। बच्चा के साथ साथ उसका परिजन भी नहीं है जिसके कारण आपको संदेह हो रहा है जो कि वहाँ पर कुछ न कुछ घटना घटी है? कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, सुनने में आया जो कि प्रशासन भी वहाँ गया जहाँ पर डेड बॉडी वहाँ पर नहीं बरामद हुआ। नहीं हुआ। क्या ये सही है? सही है। और आप अभी तक प्रशासन से गुहार लगाए हैं जो मतलब हमको इस तरह का संज्ञान में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आपको प्रशासन को दिया है, लिखित आवेदन दिए हैं? कुछ नहीं दिया। क्या कर आप आवेदन देंगे कि नहीं? आज देंगे। आज दीजिएगा आवेदन। और ये बताइए, आपको समाज के द्वारा इस तरह का कोई जानकारी जो मतलब बच्चिया के साथ किस तरह का किया गया घटना से पता चला है? हमको मालूम हुआ कि उसका बहन बहन रहता वहीं पर। कहाँ पर? जहाँ पर मेरा बच्चिया का शादी हुआ। बच्चा निर्मली। अच्छा, निर्मली में लड़का का बहन बहन है वहीं रहता है। अच्छा अच्छा क्योंकि बैंक में रहता है 8 लाख टका कि 10 लाख टका है उसके पास। अच्छा वो कह रहा है कि हम 8 लाख टका जो है हमको दे दीजिए, हमको जो मालूम हुआ। अच्छा। मेरा बच्ची बोला कि नहीं 4 लाख टका ले लीजिए। हाँ, इसी के दर्द में उसको मारपीट कर दिया। तो मार के मतलब गमन कर दिया? पैसे के लिए। पैसे के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश कुमार। बच्चिया के खाते में था 8 लाख? नहीं नहीं, तो उनका ननन जो था। अच्छा अच्छा, पैसे के लेन देन का बहन जो था। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। घर कहाँ? कटिया में। वार्ड नंबर 5। बच्चिया का क्या नाम था? ज्योति कुमारी। क्या? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। उम्र कितना होगा? तो आप उसके परिजन के पास गए जो आपके बच्चिया का जो मतलब सब भी बरामद आपको अभी तक नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी लिए? जानकारी हम लोग कहाँ से लेंगे? वहाँ कोई आदमी बोल ही नहीं रहा है कहाँ गया। आप प्रशासन को लिखित आवेदन दिए हैं? नहीं दिए हैं। उस रात में जो जानकारी दिए तो प्रशासन के द्वारा आपको क्या बताया गया? प्रशासन बोला कि यहाँ पर आया प्रशासन गेट खड़ा कर दिए। अच्छा। चेक किया। अच्छा। वहाँ पर ब्लड उलट था। कहाँ पर? घर पर। उसके घर में ब्लड उलट था? आप गए थे वहाँ? हम नहीं गए थे। अच्छा, प्रशासन बताया जो वहाँ ब्लड उलट था? प्रशासन के साथ में और लड़का सब गया था। अच्छा अच्छा, तो बताया आपको जो मतलब वहाँ जो जब जांच किया गया तो वहाँ पर ब्लड उलट था? उसके बाद भी मतलब क्या हुआ आपको? नहीं मिला बच्ची। आपको क्या आशंका है जो बच्ची के साथ को क्या हुआ है? दिया गया है। बच्ची को मार दिया गया है। आपको अभी तक लाश भी बरामद नहीं करके दिया है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन ये चाहते हैं कि हम मुकदमा क्लोज करिए। हम बोले कि हम लोग जो है
निर्णय कर दीजिए। अच्छा, वहाँ का आदमी सब क्या बता रहा है आपको? कुछ नहीं बता रहा, कोई सुनने में आया जो कि आपको आ रहा है जो परलोबन देने के लिए, जो हम आप हाँ बता है कि नहीं आप मिलान जुलान कर लीजिए। हमारे क्या मिलान जुलान? कौन आया आपका? आपका समधी आया या आपका दामाद आया? गाँव का लोग आया। गांव का लोग आया, मतलब आपके बच्ची को जो है जान से मार दिया, उसके बाद आपको कह रहा है। जब सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।